Hi, good morning. So today is going to be a big announcement from the part of Unacademy. So at 6 p.m. today, please stay tuned to get to know that what is all is going to be about the Unacademy One. So please join our live chat at 6 p.m. onwards. Okay. Now, let's come to the topic of today's discussion. So, today we are going to discuss about the importance of foreign exchange reserves for a country. Okay, so this topic is really important for both prelims as well as mains point of view. तो देखिए जो टॉपिक हमारा हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज का, in this particular topic I'm going to tell you that how the foreign exchange reserves is really important for a country. Moreover, in case of our country, India, why it is required that we need to keep certain amount of foreign exchange with us. Then we will also discuss on this particular topic of foreign exchange, what all things we are keeping as a part of foreign exchange. Okay. Then we will also talk about the rankings of certain country in terms of holding foreign exchange reserves कि किस country के पास कितने कितने reserves हैं, यानी कि हम आपको बात बताएंगे कि जो टॉप 10 कंट्री है रिजर्व्स के मामले में वो कौन सी हैं, उनके बारे में बात की जाएगी. ठीक है. उसके बाद जो हमारे प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक में से, वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली when you have knowledge about this particular topic, how the things is basically going to help you in the prelims examination. And regarding the mains examination, we are going to discuss these things, in the upcoming classes on the YouTube, moreover in the special classes and moreover in my plus course. And as you know, that from 8th of September, I'm going to start a plus course that is very important for those students who are going to appear for the prelims examination in 2023 and 2024. The entire syllabus will be based on the NCERTs. So whatever NCERTs we have from the 9th to 12th standard, that we are going to cover. And we have simply modified the NCERTs structure in such a way that it is going to help you in your prelims examination, because whatever things are being given there are not, I would say, being totally, connected with the examination. So we'll little modify them and we'll discuss about it. Now, after this, about me, this thing that I'm teaching to the civil service aspirants in the offline mode for the last 10 years, and I recently joined an academy, and my code is PGUPSC. So if you want to join my courses, please join and use my code for getting 10% off on my courses. And moreover, if you want to join the other courses also, you can use my code. Then after that, why you need to join an academy? Because this thing, it is the largest learning platform in our country. Then why you need to choose an academy? Because this thing, toppers choose an academy, so you also need to choose it. So different facilities you will get here. Then after that, you can choose the educator as per your choice, whatever educator you think is basically as per your liking, moreover is as per your weakness area for a particular subject, you can choose. Then after that, you can simply follow us on the Telegram channel and all and the community link of the Unacademy app. Then after that, you can simply choose a subscription as per your liking. So you have 2 courses, plus course and iconic courses, and to get 10% off, you have the code mentioned here, and you can use also my code also. That is nothing but the PG UPSC. You can use my code. So you have the plus courses, you have the iconic courses. What is the basic difference? This thing, in the iconic courses, you will get the one-to-one mentorship, and you will also get the mains question and answer practice. So how much you need to pay for the plus courses? You need to pay around 2697, and for the after 10% off, and you will get iconic courses for 4267 per month for 3-month for 3-year courses. Then the combo subscription also there. You can simply go for the GS plus. You can also go for the optional subject also. So you need to pay 2911, and you need to pay 4391 when you go for the iconic courses. Now you can also choose optional separately, and you can use the code for the purpose of getting 10% off, and then you can also go for the 0% EMI as per your requirement. If there is any financial problem you may be facing, then you can simply call up the given number, and you can simply go ahead, and you can choose the batches. From 8th of September, we're going to start the bilingual English and moreover the Hindi medium batches. And then adequate is going on. This thing, today we are going to announce the winner. So 18,000 rupees is going to be won by certain people. So this is basically about the mission that you need to guess, and these are the rules and regulation that you need to simply follow when it comes to participating in this contest. Okay, now let's come back to my topic of foreign exchange reserves. देखिए, अगर आज के न्यूज़पेपर की ही बात करेंगे तो न्यूज़ आई है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा प्रोवाइड किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि $3 बिलियन से हमारे रिजर्व्स जो हैं कम हो गए हैं.
So basically on 26th of August 2022, the reserves of foreign exchange in case of our country is basically dipped by 3 billion. ठीक है, अब देखिए एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारे इंडिया के अंदर जब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की, तो ध्यान रखिएगा दिस टास्क इज बीइंग गिवन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सपोज टू कीप द रिजर्व, and Reserve Bank of India also is having the power to simply use the reserve as per the requirement of the country. Okay, यानी कहने का मतलब क्या है, रिजर्व रखेगा कौन, आरबीआई, रिजर्व्स को यूज कौन करेगा, आरबीआई, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नाउ हर वीक आप मान के चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा पब्लिश करता है कि हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं. ओके, सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन यू विल गेट टू नो इन द अपकमिंग डिस्कशन. ठीक, मोरओवर अगर आप बात करेंगे कि किसी भी कंट्री को, खासकर अगर आप बात करें, देखिए किसी डेवलपिंग कंट्री, हमारे देश की बात करें, सो व्हाई वी नीड टू कीप अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. देखिए अगर आपको मैं बताऊं, पहले के जमाने में, लाइक इफ यू टॉक अबाउट दी टाइम ऑफ 1800 और यू कैन से इन द अर्ली 1900 ऑल्सो, द पॉइंट इज व्हाट, दैट टाइम कंट्रीज वर मेनली फॉलोइंग समथिंग कॉल्ड बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का फॉलो किया जाता था, जिसमें आप मान के चलिए if you want to simply buy something from the other country, then what you need to do, you need to give something in return of that particular thing that you want to simply import. For example, जैसे एक चीज जो हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत मशहूर थी जब आप इंपोर्ट की बात करेंगे इन द टाइम ऑफ मुगल्स एंड द अदर, कि यूरोपियन कंट्रीज वर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग वाइन, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वाइन्स व्हिच वाज रियली गुड. ओके, and in case of India, as you know, we were really good in terms of making the different kind of diamond jewelry and the gold jewelry. तो हम लोग क्या करते थे, we need to simply give them this particular jewelry and we need to simply import these wine and the other thing which they used to make. Getting what I'm trying to say? So the point is what? It was a barter system. अब देखिए जैसे जैसे फॉरेन और यू कैन से फॉर्मल करेंसी सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो कुछ करेंसीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई और कुछ कंट्रीज की जो करेंसी थी वो बहुत ही वीक रह गई. तो देखिए दो कॉन्सेप्ट होते जो हम यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड एज अ हार्ड करेंसी. हार्ड करेंसी इज बेसिकली दैट करेंसी ऑफ अ कंट्री विच इज बेसिकली बीइंग एक्सेप्टेबल एट ए ग्लोबल लेवल. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, चाइनीज युआन and moreover some other countries currency also. And then there is a concept called soft currency. Soft currency means a currency which is keep on losing value. For example, our Indian rupee, Indonesian rupee, Pakistani rupee, then the different currencies of developing countries specifically. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हार्ड करेंसी जो एक्सेप्टेबल है, सॉफ्ट करेंसी जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे कम होती जा रही है. इसलिए मान के चलिए when it comes to simply buying something from outside, now you can say countries are demanding that we need something which is having a value at an international level. तो इसलिए देखिए होता क्या है कि अब जो है करेंसीज का इस्तेमाल होता है when it comes to buying something. ओके, जैसे अगर मान लीजिए हमें इंडिया में कुछ इंपोर्ट करना है, तो उस इंपोर्ट को करने के लिए वी हैव टू पे. ओके, एंड दैट पेमेंट नीड टू बी गो इन दी हार्ड करेंसी. ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जिन कंट्री की करेंसीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे यूएस के केस में अगर आप बात करेंगे, so US is not having any kind of problem in terms of buying something from outside, because when it comes to buying something they need to simply pay in dollars. okay, वो कैश पे कर देते हैं और उसके बाद it is very easy for them to simply take the dollars back also. वो अपने डॉलर्स को वापस भी ले आते हैं. कैसे? यूएस गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करती है उनको अलग अलग कंट्रीज को वो सेल कर देते हैं, एंड देन आफ्टर दैट दे आर बीइंग एबल टू टेक देयर डॉलर्स बैक. सो इट इज बेसिकली वेरी इजी फॉर देम. But for a country like India, which is having a currency which is not acceptable at a global level, मान के चलिए, तो उस केस में हमें उस चीज को पहले अर्न करना पड़ेगा, then we need to simply buy something. ओके, तो ये पॉइंट हो. तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंस किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की क्यों होती है, बिकॉज दे नीड टू बाय समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो फर्स्ट दे नीड टू अर्न एंड देन दे नीड टू सिंपली पे इट बैक. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देन सेकेंडली, हमारे रिजर्व्स जो हैं देखिए 561.046 बिलियन के आसपास है ऑन 26th ऑफ अगस्त. दैट इज द लेटेस्ट डेटा गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट पे, इंडिया लॉस्ट अबाउट 45 बिलियन यूएस डॉलर इन रिजर्व्स सिंस अप्रैल 2022, बट द पेस ऑफ फॉल स्लो डाउन, आरबी डेटा शोड. यानी कि अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून की बात करेंगे तो हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बहुत तेजी से कम हुए. बट अब जो मान के चलिए जुलाई और अगस्त की बात करेंगे तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम तो हुए हैं,
बट वो कंपैरेटिवली कम होने की जो उनकी एक पेस थी, यानी कि जो उनकी एक जो परसेंटेज थी, वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्या है। आउट ऑफ द टोटल रिजर्व फॉरेन करेंसी एसेट्स स्टूड एट 498.645 बिलियन, यानी कि जो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज की जो करेंसी है कैश में, ठीक है, या मान के चलिए उन फॉरेन कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनके जो बॉन्ड है, जैसे यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो बॉन्ड हो गए, ठीक है, जापानीज गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, जो भी कंट्रीज की करेंसी, हार्ड करेंसी जिनके हमने बॉन्ड परचेज कर रखे हैं। बिकॉज देखिए इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू सिंपली कीप दी फॉरेन रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, बिकॉज अगर आप कैश रखेंगे तो मान के चलिए उस कैश से आप कुछ भी अर्न नहीं करेंगे, बट जब उस कैश को आप सिक्योरिटीज में चेंज करा देंगे देन यू विल बी एबल टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे आपको इंटरेस्ट की अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इन ए वे इट इज ऑलवेज बेटर टू सिंपली कीप दी फॉरेन रिजर्व्स इन दी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इंस्टीड ऑफ कीपिंग कैश ऑल टुगेदर। बट मान के चलिए हम लोग जो करते हैं वो एक कॉम्पोजिशन रखते हैं कि कुछ हमारे पास कैश है और बाकी हमारे पास सिक्योरिटीज है, क्योंकि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो फॉरेन करेंसी की तो तुरंत उसको हम यूज कर पाए। गेटिंग? देन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वी बीन कीपिंग इन गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड की जो वैल्यू अभी हमारे पास है वो है 39.643 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, एंड देन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी वी बीन कीपिंग इन द फॉर्म ऑफ आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट। अब देखिए स्पेशल ड्रॉइंग राइट क्या होता है? Special drawing right is nothing but a kind of a share certificate, I would say, which is basically issued by the International Monetary Fund that we need to buy. Okay? और उस SDR में क्या होता है, अलग अलग फॉरेन करेंसी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, करंटली इन दी SDR वी हैव यूएस डॉलर, यूके पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन, ओके, एंड देन वी हैव द यूरोपियन यूनियन यूरो। ठीक है, तो इस तरह से इन करेंसीज को इंक्लूड किया गया है। सो वट एवर करेंसीज वी हैव हियर, accordingly you can say that currencies are supposed to be paid to buy the SDR. okay, इस तरीके से आपको इनको पे करना होता है, then you have to simply buy it. ठीक, तो देखिए द बैलेंस इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ IMFs एज स्पेशल ड्रॉइंग राइट एंड रिजर्व्स। तो यानी कि जो भी हमारे पास 2 to 3% के आसपास की जो हमारे पास उनके जो SDR हैं, उनकी जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से हमें ये बताया जाता है कि हर महीने कि हर वीकली बेसिकली हमारे पास कितने SDR की वैल्यूएशन है। जैसे देखिए अगली स्लाइड में अगर आप देखेंगे, so that is what the data is being given by the Reserve Bank of India, that of the total reserves, the foreign currency assets that you have in case of rupees crore and moreover in case of US million dollar. अब देखिए पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे US मिलियन डॉलर में ही क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, वाई नॉट वी आर प्रोवाइडिंग इन सम अदर करेंसी, बिकॉज डू रिमेंबर US डॉलर इन केस ऑफ आवर कंट्री इज बेसिकली नोन एज अ इंटरवेंशन करेंसी। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं कि इसको इंटरवेंशन करेंसी का नाम दिया गया है। सो द टोटल रिजर्व्स, the amount is basically in US dollars around 561,046 million US dollar. That is our total reserves. अब इनकी बाइफिकेशन क्या है, इतनी हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, इतना हमारे पास गोल्ड है, इतने हमारे पास SDR है और इतने हमारे पास रिजर्व्स पोजीशन इन दी IMF. So that is nothing but the money that we have paid to the IMF that is basically being given in this particular way. तो ये हो गए हमारे SDR की वैल्यूएशन एंड रिजर्व बैंक और जो हमारे रिजर्व पोजीशन है IMF के साथ, और जो हमारे पास गोल्ड असेट है और जो हमारे पास फॉरेन करेंसी की असेट्स हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सो इफ यू डू द टोटल ऑफ ऑल दीज 4 थिंग्स यू कैन से दैट इज कमिंग आउट टू बी 561.046 बिलियन US डॉलर। अगर आपको मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली आफ्टर 3 पॉइंट्स यू जस्ट नीड टू पुट अ डॉट एंड देन यू विल गेट दी दिस पर्टिकुलर थिंग इन बिलियन। और अगर आपको इसको ट्रिलियन में कन्वर्ट करना है सो दैट इज नथिंग बट दी 0.561 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, इतने रिजर्व्स हमारे पास है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ। अब देखिए अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना है, which is having almost 3.2 trillion US dollar worth of foreign currency reserves with them. Japan 1.3 trillion, Switzerland they are 964 billion, Russia 566 billion, and India is basically having 561 billion US dollar, and the data is basically being given on 26th of August 2022. और आप देख रहे हैं कि हमारे रिजर्व्स इतने से कम हुए हैं।
ताइवान की बात करें 547, सऊदी अरेबिया 465, हांगकांग 447, साउथ कोरिया 438 एंड ब्राजील इज बेसिकली 390 बिलियन यूएस डॉलर. सो दीज आर द टॉप 10 रिजर्व्स होल्डर करंटली एट ए ग्लोबल लेवल. ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट तो है. अब देखिए यहां पे जो हमें चीज समझनी है, वट एवर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज बेसिकली व्हाट, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब देखिए यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिखा नहीं है डेलिबरेटली, बिकॉज आई नीड टू टेल यू वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, in a country like India, why there is a need to have foreign exchange reserve? The point is here, we need foreign currency for the purpose of import. अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, हमने एक्सपोर्ट किया, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे, वी विल अर्न फॉरेन करेंसी. ओके, नाउ दैट सेम फॉरेन करेंसी विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट्स, फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट. तो जो आप इंपोर्ट करेंगे उसके लिए आप ये पेमेंट कर लेंगे. तो मान लीजिए आपने $100 का एक्सपोर्ट किया और आपने $120 का मान लीजिए इंपोर्ट कर लिया. सो इन दिस केस इस 100 में से पेमेंट हो गई. अब हमें कितने चाहिए एक्स्ट्रा? वी नीड $20 मोर. अब देखिए एक तरीका तो ये है कि इन $20 के लिए या तो हम बाहर से लोन ले लें डॉलर्स में, या फिर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, एज द पीपल आर डिमांडिंग फॉरेन करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट एंड वी आर बीइंग शॉर्ट ऑफ इन द मार्केट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा. ओके, एंड देन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपीज दे विल आल्सो टेक इट फ्रॉम यू. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरीके से देखिए डॉलर्स रिजर्व्स में से दिए जाएंगे और फिर उनको यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स. बट यहीं पे मान के चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे कहते हैं कि नहीं सर आप बाहर से बोरो कर लीजिए, तो उस केस में बोरो भी कर सकते हैं और वो नहीं प्रोवाइड कर देंगे. जैसे मैंने पहले कहा था, दे विल डिसाइड, हु विल डिसाइड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल डिसाइड दैट हाउ दे नीड टू यूज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए यहां पे तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिजर्व्स के लिए, वो ये है, देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंपोर्ट कवर. मान लीजिए कोई भी ऐसी सिचुएशन देश में होती है, वॉर होती है, या मान लीजिए सूखा पड़ गया, या मान लीजिए बहुत बड़ी एक नेचुरल डिजास्टर हो गया. इन दैट केस इमेजिन वी आर नॉट एबल टू मेक एनीथिंग इन केस ऑफ आवर कंट्री एंड नाउ वी नीड टू इंपोर्ट. तो मान लीजिए उस केस में हमें करना होगा बाहर से इंपोर्ट, यानी कि इमेजिन वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग इन केस ऑफ आवर कंट्री एंड नाउ वी नीड टू सिंपली बाय थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. तो उस केस में मान के चलिए उन इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए हमें बाहर से जब हम चीजों को मंगवाएंगे, सो वी नीड टू पे फॉर इट. और आप जानते हैं पेमेंट करने के लिए कौन डॉलर्स प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दे विल एक्सेप्ट द पेमेंट इन डॉलर्स ओनली, सो दैट विल बी गिवन बाय द अगेन सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दे नीड टू पे इट. अब देखिए यहां पे जब पॉइंट आएगा व्हेन इट कम्स टू दैट दे नीड टू पे फॉर द इंपोर्ट कवर, तो मान के चलिए आईएमएफ कहता है कि किसी भी कंट्री के पास इतने रिजर्व्स एटलीस्ट होने चाहिए कि इफ इन केस दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इवन अ सिंगल ग्रेन ऑफ फूड ग्रेन, then they need at least that much amount of reserves by which they will be able to fulfill their continuous import for at least 8 to 10 months. ठीक है, इतना हमारे पास रिजर्व्स होना चाहिए, यानी कि to have a good amount of security for the country, that is concept of import cover has been provided, and the country need to have at least that much amount of reserves with them by which they will be able to fulfill their 8 to 10 months of continuous import there. समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए इसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है. थर्ड, एज यू नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सचेंज रेट. जैसे आप लोग जानते हैं अभी $1 इज इक्वल्स टू अराउंड 80 रुपीज. अब देखिए कई बार आपने सुना होगा कि हमारे रुपीस की वैल्यू कम होती जा रही है. ओके, सो इन दैट केस इफ द रुपी वैल्यू इज बीइंग गोइंग डाउन, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है रुपी की वैल्यू फिक्स होने के इन कंपैरिजन टू डॉलर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात ही है, अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, इमेजिन देयर आर 10 कार्स and there are 10 peoples to demand, then there is no problem. What if we have 10 cars and there are 15 peoples to demand, then what happened? The price of the car will go up. समझ पा नहीं पाने, क्योंकि
डिमांड करने वाले लोग ज्यादा इन कंपैरिजन टू द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट। सेम वे, अगर डॉलर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है and there is a lesser amount of supply in the country, then what happened? The price of dollar will increase. That means from 80 to 81, 82, 83 and so on, it will further keep on increasing. Getting what I'm trying to say? On the other hand, अगर डॉलर की सप्लाई मान लीजिए बहुत ज्यादा है, if there is an excessive supply of dollar in the country because we have been doing lot of export and we have been earning but we are not importing that much, तो उस केस में होगा कि हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी because we are demanding less and there is a more dollar coming in our country. So thing is very simple कि अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है हमारे देश में एंड वी नॉट एबल टू सप्लाई, तो देखिए डिमांड सप्लाई का मतलब क्या है कि डॉलर्स आ रहे हैं और डॉलर्स जा रहे हैं। आएंगे कैसे? जब हम अर्न करेंगे, और जाएंगे कैसे? जब हम पे करेंगे आउटसाइड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो सिंपली, अगर डॉलर्स मान लीजिए देश में कम आ रहे हैं और जा ज्यादा रहे हैं, दैट मींस वी आर अर्निंग लेस एंड पेइंग मोर, देन द रुपी विल लूज वैल्यू इन द मार्केट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्या है, अगर हमारे रुपी की वैल्यू बहुत तेजी से कम हो रही है तो उस केस में उसको होल्ड करने के लिए भी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनको यूज करके टेम्परेली हम अपनी करेंसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग यानी कि उसकी वैल्यू को कम होने से बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर डॉलर की कमी है एंड पीपल आर बीइंग डिमांडिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट द पीपल हु आर सेलिंग डॉलर्स इन द मार्केट दे आर चार्जिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो रिजर्व्स में उनके पास डॉलर बचे हैं उनको मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट करेगा, so that whatever you people are demanding that will be met with the help of this particular supplied made by the Reserve Bank of India। तो मान के चलिए टेम्परेरी यहां पे हमारे पास एक तरह से जुगाड़ है कि जब करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको रोकने के लिए इस तरीके से हम थोड़े डॉलर्स को मार्केट में सप्लाई कर देंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा डिमांड बनी हुई है उसको हम कंट्रोल कर पाए। एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, देश में अपनी करेंसी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी नीड टू सिंपली डू रिफॉर्म्स इन द कंट्री टू ब्रिंग मोर एंड मोर डॉलर्स, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ठीक है, एफडीआई ज्यादा लेके आओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ज्यादा लेके आओ। अगर रेमिटेंसेस देश में ज्यादा आएंगे तो मान के चलिए कहीं ना कहीं जो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी वो हमारी काफी हद तक वो हमारी रुक जाएगी और हम उसको होल्ड कर पाएंगे। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So normally you can say the three most important requirement for a foreign exchange reserves in case of any developing country is what? That they need to fulfill their import requirement, then they need it for the purpose of import cover, and the third is that they sometimes use it for the purpose of maintaining their exchange rate value in the country. Getting what I am trying to say? और बहुत सारे uses हैं but ये हमारे तीन सबसे important चीजें, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ये आता है कि इन रिजर्व्स को रखते कहाँ हैं। कई बार ये लोग क्वेश्चन करते हैं जब मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ कि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रखता कहाँ है। देखिए किसी को नहीं पता है। इट्स अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु सपोज टू कीप इट सीक्रेटली, तो हो सकता है दिल्ली में हो सकता है मुंबई में हो सकता है कहीं पे उनके अपने कुछ और जगह हो जहां पे दे बीइंग कीपिंग इट। सो नेवर बॉदर अबाउट कि वो कहां रखते हैं कहां नहीं रखते हैं, जस्ट दैट यू कैन से यू दे नीड टू कीप इट विद देम। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो देखिए तीन सबसे और इंपॉर्टेंट भी है बट आई एम अगेन रिपीटिंग दैट दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर कीपिंग अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाय अ डेवलपिंग कंट्री। तो मान के चलिए अगर हमारी करेंसी को हमें मजबूत रखना है then obviously we need to have more and more reserves because हमारे पास उतना ही ज्यादा स्कोप होगा मार्केट में एक्स्ट्रा करेंसी को सप्लाई करने के लिए अगर किसी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू मार्केट में कम होती जा रही है। Getting what I'm trying to say? Now see, this is a question of 2019 prelims which was asked by UPSC. So as you can see, in the context of India, which of the following factor is our contributor or contributors to reducing the risk of a currency crisis? अब देखिए currency crisis का मतलब क्या? Currency crisis means what? When a currencies keep on losing value in the market at a very fast rate, यानी कि आपका जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है बहुत तेजी से, 70 था 80 हो गया 90 हो गया, बहुत तेजी से वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं करेंसी क्राइसिस सिचुएशन। तो उस केस में हाउ यू कैन सिंपली होल्ड इट? सो दैट मींस पीपल आर डिमांडिंग फॉरेन करेंसी अ लॉट बट वी डोंट हैव दैट मच सप्लाई इन द मार्केट। तो कहने का मतलब क्या, इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि हमें डॉलर्स की सप्लाई कैसे बढ़ानी है। सो एज यू कैन सी द फॉरेन करेंसी अर्निंग इन ऑफ द आईटी सेक्टर, सो इफ दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देन सर्टेनली इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए यहां पे दूर दूर तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फॉरेन करेंसी से कोई भी कनेक्शन नहीं है।
तो इसलिए स्टेटमेंट को रॉन्ग माना जाएगा. Remittances from Indian abroad, that means when these people will send lot of money in case of our country, then you can say we will be able to reduce the currency's value which is being lost in the market. So under that, as you can see, option number 1 and option number 3 are correct. So that's why the answer has to be B here. तो देखिए पॉइंट क्या है, क्वेश्चन टफ नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो देखिए यही कॉन्सेप्ट जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा मेन एक फोकस होगा, मान के चलिए इसी से चीजें बेटर हो पाएंगी और आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देखिए आपको दिखाता हूं. अगेन इन 2019 प्रीलिम्स, which one of the following is most likely is not, so sometime we are missing this word, is not the most likely measures by the government RBI taken to stop the slide of Indian rupee. That means again कह रहे हैं कि हमारी रुपी की वैल्यू मार्केट में गिर रही है. As you can see, curbing imports of non-essential goods and promoting export, यानी कि बात करे जा रहे हैं कि जब इंपोर्ट को हमें कम करना है और एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे मोर डॉलर्स विल कम इन, व्हेन जब आप इंपोर्ट्स को रोकेंगे मोर डॉलर्स विल गो, लेसर डॉलर्स विल गो आउट. सो इन अ वे यू विल बी एबल टू सिंपली कंट्रोल इट. एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू यूज रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स. ओके, अब देखिए मसाला बॉन्ड के केस में अगर आप बात करेंगे यहां पे, तो उस केस में व्हेन यू सिंपली बोरो, so basically what happened, you will go outside and you will simply sell the bonds and you will get the dollars back in my country. So in a way, again you can say things will be much better. Easing conditions relating to external commercial borrowing, that means again you will allow the people to simply borrow from outside. So that means what happened, again more dollars will come in our country. तो ये भी हेल्प करेगा, ये भी हेल्प करेगा, ये भी हेल्प करेगा, but they're saying not. Following an expansionary monetary policy. अब देखिए यहां पे फॉरेन करेंसी की बात नहीं करी जा रही है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है यहां पे वो गलत होगा. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंपोर्ट कवर, देखिए जिसकी भी मैं बात कर रहा था, इंपोर्ट कवर इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स दैट कुड बी कवर्ड फॉर बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स. यस, दैट इज करेक्ट. इंपोर्ट कवर इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ए करेंसी. डेफिनेटली, क्योंकि आप मान के चलिए अगर इतना आप इंपोर्ट कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है, दैट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ रिजर्व्स विद देम, यू एंड यू विल बी एबल टू सिंपली कंट्रोल इट. सो इन अ वे बोथ द स्टेटमेंट्स आर बेसिकली करेक्ट, सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो द पॉइंट इज व्हाट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं, और मान के चलिए लास्ट ईयर भी 2021 में, 2022 में भी हमारे पास दो तीन क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए. सो दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो पॉइंट क्या है, हमें क्लास में क्या डिस्कस करना होता है, दैट व्हाट वाज द करेंसी सिस्टम इन केस ऑफ आवर कंट्री बिफोर 91, देन व्हाट वाज द सिस्टम फॉर 1.5 year दैट वी फॉलोड बिटवीन 90 to 93, एंड देन व्हाट वाज द सिस्टम दैट वी हैव बीन फॉलोइंग करंटली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ devaluation of currency, what is the meaning of depreciation of currency, what is the meaning of appreciation of currency, what is the meaning of stabilization of the economy, what is the meaning of prisoner's dilemma, and what are the reforms that we need to have, and moreover the convertibility of currency. तो ये सब टॉपिक जब हम डिस्कस करते हैं क्लास में, तो मान के चलिए आपको काफी अच्छा आपका होल्ड हो जाता है दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड मोreover you will be easily able to solve the question from the prelims point of view. Getting what I am trying to say? तो देखिए ये था जो मुझे आज के टॉपिक में आप लोगों को बताना था. Now, as you know, UPSC GS combat is going on, because so if you basically kind of participate in this particular test, 50 questions, 60 minutes, you will be able to get good amount of 50, 30 and 25% for the first 500 rank holders. Then after that, the mains test series has been started for 2023. So if you want to enroll, you can enroll it here, and the September 11 is the date when the test is going to start. So 30 plus test, sectional full length, and the essay test you will get, and you will also get a good amount of feedback here. So that is all I want to tell you about this particular, today's topic. Now, I'm again repeating, from 8th of September, early morning, we are starting the crash course for the aspirants who are going to appear for 2023 prelims, and that is going to be based on the NCERTs. Okay. So thank you very much to listening to me. So we are going to meet again in tomorrow, some of the topic which we're going to discuss in tomorrow's lecture for the YouTube. Thank you very much. Take care and bye-bye.